Hello, here we start our chapter 2, class 12 biology, sexual reproduction in flowering plant. This is our chapter 2. In this, here we saw a flower. In this flower, this is a anther and filament. This is anther and anther. This is a filament and filament and anther is combined called a stamen. So this is a male part of the flower. This is called a male part of a flower. And if we see that this is a part of ovary, this is which is based on thalamus. This is called a thalamus or receptacle. So this is a female part of this flower. So in this stigma, style and ovary, which is called a carpel, is called a female part of a flower. And in this flower, first we saw a pre-fertilization event. Several hormonal and structural changes, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हमारे फ्लावर का डेवलपमेंट होने पर एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, एक फ्लावर में कैसे कैसे चेंजेस होता है, इस चीज को हम इस चैप्टर में देखेंगे. अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को बहुत अच्छे से टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में इसे अच्छे से समझेंगे. इसे आप ध्यान से देखें. इन दिस फ्लावर अ pre-fertilization event, several hormonal and structural changes result in the development of flower. एक फ्लावर के निर्माण में several hormonal, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं एक फ्लावर के अंदर, और एक इन्फ्लोरेंस बियर द फ्लावर बर्ड्स देन द फ्लावर. एक इन्फ्लोरेंस बियर करता है फ्लावर बर्ड को, यानी कली का निर्माण करता है और कली से फिर फूल बनता है. फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, इसलिए हमें स्टडी यहाँ पर सबसे पहले फ्लावर के बारे में करना है. इन द फ्लावर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एंड्रोशियम and the gynoecium is a female reproductive part. So in this we saw first a male reproductive part. A male reproductive part is called a androecium. The androecium consists of wall of stamens. Stamen के घिरा हुआ या स्टेमन से बना हुआ पूरा का पूरा एक होल एंड्रोशियम कंसिस्ट करता है, एंड्रोशियम बनाता है. The stamens consist of the filament and anther. Bilobed structure. This is called a anther. This is a anther. Anther. This is a filament. And anther and filament both is called a androecium part. So the stamens consist of the filament and anther. This is the anther and this is filament. These both are called a stamen also. So filament is attached to the thalamus or to the petal. ये एक एंथर है. ये एंथर टू लॉब्ड स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा. ये टू लॉब्ड स्ट्रक्चर में है, एंथर पाया जाता है, और ये फिलामेंट से जुड़कर थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है. इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एंथर टू लॉब्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, टू लॉब्ड स्ट्रक्चर इस प्रकार का दिखाई देता है. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में इसको अगर हम इस तरीके से सेक्शन डिवाइड करके अगर हम स्टडी करते हैं, तब ये टू लॉब्ड स्ट्रक्चर बाद में 4 लॉब्ड स्ट्रक्चर में डिवाइड हमें दिखता है.
और each lobe has called a theca. There is so 4 theca is present in one anther. A typical anther is bilobed and each lobe is diathecious, consist of 2 theca. यहाँ पर ये 2 lobed हैं, ये 2 lobed में इनको अगर हम और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, हम इसका कट कर कर सेक्शन कटिंग करके, तब एक लॉब 2 लॉब में बटा हुआ अलग से होता है. The microsporangia are located at the corner in each theca. हर थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होता है अंदर की ओर. The further develop to from pollen sac which contain as pollen grain. और ये माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है पोलन ग्रेन को. The structure of microsporangium. माइक्रोस्पोरेंजियम का एक पार्ट का अगर हम स्टडी करें, डीपली स्टडी करें, तब आप देखेंगे कि बाहर की जो लेयर है, फर्स्ट जो लेयर बाहर की प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस. एंड सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एंडोथीशियम. थर्ड लेयर इज कॉल्ड this is third layer. This is called a middle layer. And this layer is called a microspore mother cell. This is a microspore mother cell. Or it is called also a tapetum. So there is 3 layer are present: epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. The outer 3 layer are protective and help dehiscence of anther to release the pollen grain. बाहर की जो 3 लेयर हैं, आप बाहर की 3 लेयर देख रहे हैं. बाहर की लेयर है हमारी एपिडर्मिस, दूसरा एंडोडर्मिस सेकेंड लेयर, तीसरा है हमारा टैपिटम अंदर की ओर पाया जाता है, तीसरा है हमारा मिडिल लेयर. ये थर्ड लेयर मिडिल लेयर कहलाती है, थर्ड लेयर मिडिल लेयर कहलाती है हमारी. The tapetum provide nourishment to the developed pollen grain. ये बाहर की ओर ये each में microsporangia has a layer of tapetum which provide nourishment. ये tapetum nourishment देती है, हर माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर उपस्थित होती है, और जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता होती है, वो भोजन टैपिटम प्रोवाइड करवाती है हर पोलन ग्रेन को. यहाँ पर पोलन ग्रेन बहुत सारे उपस्थित हैं, हर माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन उपस्थित. In the young anther, the sporogenous tissue form the center of each microsporangium. और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की ओर स्पोरेजेनस टिश्यू से वो पूरा का पूरा भरा हुआ होता है. माइक्रोस्पोरेजेनेसिस को हम अगर स्टडी करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम PMC, पोलन मदर सेल. दिस इज कॉल्ड अ पोलन मदर सेल. सो अ पोलन मदर सेल मियोसिस की घटना के द्वारा, मियोसिस के द्वारा टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन बन जाते हैं और फिर सेपरेट होकर इस तरीके से पोलन ग्रेन का निर्माण करते हैं. पोलन सैक बना हुआ होता है एक एपिडर्मिस, फाइब्रस लेयर, टैपिटम और पोलन से बना हुआ दिखाई देता है. As development occur in the anther, the sporogenous tissue undergoes meiosis to microspore tetrad. एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को यहाँ पर बनने के लिए पहले पोलन मदर सेल यानी हर स्पोरोजेनस टिश्यूज के अंदर एक PMC यानी पोलन मदर सेल उपस्थित होती है. ये पोलन मदर सेल मियोसिस की घटना के साथ टेट्राड पोलन ग्रेन का निर्माण करती है, और ये टेट्राड पोलन ग्रेन बाद में सेपरेट होकर पोलन ग्रेन में परिवर्तित हो जाते हैं. Each cell of sporogenous tissue has capacity to give rise to a tetrad.
एक स्पोरेजेनस टिश्यू में इतना क्षमता होती है कि वो एक टेट्राड को जन्म दे सकें। Hence, each cell is potential pollen or PMC. So, as the anther mature, the microspore get detached. और जैसे ही अंदर पोलन ग्रेन अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। पोलन ग्रेन किस प्रकार से होते हैं ये हम देखेंगे। पोलन ग्रेन्स बिलो रिप्रेजेंट द मेल गैमेट्स आर स्फेरिकल हैविंग ए 2 लेयर्ड वॉल। एक पोलन ग्रेन में 2 लेयर हमें देखने को मिलेगा। बाहर की ओर एक्साइन पार्ट पाया गया है जो कि बना होता है सेलुलोज का। एक्साइन लेयर बाहर की ओर होती है, एक्साइन कहलाएगी, और एक इनर लेयर होगा, उसे हम कहेंगे इंटाइन लेयर। Exine layer, hard layer made of sporopollenin, which is extremely resistant and can withstand high temperature, acidic and alkalic condition and enzyme. इस प्रकार का एक्साइन बाहर का हर पोलन ग्रेन का होता है जो कि हाईली टेम्परेचर रेजिस्ट होता है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर में भी वो अपने आप को जीवित बचाए रखते हैं, चाहे किसी प्रकार का एसिडिक माध्यम हो, चाहे कोई एल्केलिक कंडीशन हो, चाहे किसी प्रकार का कोई एंजाइम उन पर अटैक करे, लेकिन बाहर की जो एक्साइन होती है, जो बाहर की जो सतह होती है, लेयर होती है, वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। हार्ड लेयर मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जिसके कारण इस पोलन ग्रेन को ना तो किसी प्रकार का कोई तापमान, ना किसी प्रकार का कोई एसिडिक कंडीशन उसको किसी प्रकार से हार्डली परेशान नहीं कर पाती, इसे गला नहीं पाती, इसे किसी प्रकार का हाईली टेम्परेचर इसे जो है सुखा नहीं पाता। सो इंटाइन लेयर जो अंदर की होती है, कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टिन, जो अंदर की लेयर होती है वो भी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जिसके के कारण अंदर पोलन ग्रेन सुरक्षित होते हैं। Every mature pollen grain contain 2 सेल। प्रत्येक पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल पाई जाती हैं। एक होती है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस, यानी एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस कंटेन फूड रिजर्व। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो फूड रिजर्व का काम करता है, और जो जनरेटिव सेल होती है स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये स्मॉल होती है और फ्लोट करती रहती है, जो बाद में जर्मिनेट होती है। इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। किसी किसी एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इन अदर जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट और 3 सेल्ड स्टेज किसी किसी में पाया जाता है। The viability of pollen grain after they are shed depend upon temperature and humidity. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है कि पोलन ग्रेन आगे जाकर किस प्रकार से परिपक्व होकर परिवर्धित होगा। इट रेंज फ्रॉम 30 मिनट टू फ्यू मंथ, और उनकी रेंज होती है जीवन की 30 मिनट से लेकर फ्यू मंथ तक। गाइनोशियम एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब हमने पढ़ा मेल गैमेटोफाइट में हमारे पोलन ग्रेन सब बनकर तैयार हो गए हैं, यानी मेल जो पार्ट है फ्लावर का वो बनकर अब तैयार है। अब हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट यानी गाइनोशियम का फॉर्मेशन, गाइनोशियम में फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटो। सबसे पहले द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट मे बी मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी, यानी एक पिस्टल नुमा संरचना भी पाई जा सकती है और बहुत सारी पिस्टल नुमा संरचना भी पाई जा सकती है। इट इज कॉल्ड अ मल्टीकार्पलरी। In multicarpellary, the pistil may be fused in one
सिनकार्पस और फ्री एपोकार्पस। पिस्टिल जब फ्यूज्ड होते हैं इसे हम सिनकार्पस कहते हैं। यहाँ अगर एक गाइनोशियम के फ्लावर के पार्ट को हम स्टडी करते हैं तब इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ये थैलेमस है, यहाँ पर ये स्टिग्मा पार्ट कहलाता है। ये स्टाइल और ये पार्ट हमारा जहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा इसे हम कहेंगे ओवरी। स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी मिलकर फीमेल पार्ट बनाते हैं जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं। In this part, each pistil consists of, हर पिस्टिल कंसिस्ट करती है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पार्ट को। ओवरी पार्ट में मेगास्पोरेंजियम यानी स्पोर्स के निर्माण को यहाँ हम मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। मेल पार्ट में जब स्पोर्स का निर्माण हुआ तब हमने उसे माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन बताया। यहाँ फॉर्मेशन को हम मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। द ओव्यूल इज अटैच्ड द प्लेसेंटा बाय द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से एक ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। द जंक्शन ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम वह पार्ट है जहाँ पर ओव्यूल में फ्यूनिकल और ओव्यूल मिलते हैं, उसे हम हाइलम पार्ट कहते हैं। Each ovule has one or two protective layer called integuments which cover the rest of the ovule except a small opening called micropyle. There is two end of megasporangium, a micropyle and chalaza. So this is a hilum, this is a funicle, this is a part of micropyle and micropylar pole. Outer inner part it is called integument, and this is a nucleus. This is a nucleus and this is a embryo sac. The embryo sac or female gametophyte is located within the nucleus. Nucleus के अंदर embryo sac और female gametophyte मिलता है। मेगास्पोरेंजियसिस में मेगास्पोर मदर सेल को हम MMC कहेंगे। गेट कन्वर्टेड इनटू मेगास्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का निर्माण मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा होता है। मेगास्पोर मदर सेल 2n होते हैं। मियोसिस की फर्स्ट के द्वारा ये दो भागों में बट जाते हैं और मियोसिस सेकंड के बाद ये टेट्राड फॉर्म में आ जाते हैं और तीन जो हैं अलग हो जाते हैं और जो केवल एक हमारा मेगास्पोर बचता है उसे ही हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। अदर थ्री मेगास्पोर्स आर डिसइंटीग्रेटेड। जो तीन होते हैं वो जो है बाहर बेकार हो जाते हैं और जो एक होता है वही फंक्शनल मेगास्पोर का कार्य करता है और वही डेवलप होता है मेगास्पोर के अंदर। फंक्शनल मेगास्पोर में इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल while the other three degenerate। तीन जो रहते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर ही फंक्शनल मेगास्पोर का कार्य करता है। द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस प्रकार के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर divide mitotically to form two nuclei which move toward to opposite end forming a two nucleate embryo sac। two nucleate embryo sac का ये निर्माण इस प्रकार से करते हैं। Two form mitotic division ensure leading to the formation of four nucleate or four nucleate to eight nucleate
embryo sac. When we saw that there is a 2 cell and 2 cell is divided into 4 cell and 4 cell is divided into 8 cell. So this is a synergid and egg cell, and there is 2 cell are present in central cell, and this is called a 2 polar nuclei, and 3 cell are present in antipodal cell. So in the Chalaja ant, 3 cell is present is called antipodal cell, and there is a micropylar ant. So 2 synergid cell are also present, and in the middle 2 polar nuclei are also present. So 6 of the 8 nuclei get surrounded by the cell wall, and the remaining 2 called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. लार्ज सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई में वे उपस्थित हो जाते हैं. द सिनर्जिड हैव स्पेशल थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड. जो सिनर्जिड होते हैं वो स्पेशल थिकनिंग देते हैं माइक्रोपाइलर एंड को. माइक्रोपाइलर एंड पर जो सिनर्जिड हैं ये ज्यादा थिकनिंग देकर इसका निर्माण करते हैं. These are together called the filiform apparatus. This is called a filiform apparatus. So it help in leading the pollen tube into the synergid. Synergid को pollen tube को synergid तक पहुंचने में मदद करते हैं. 3 cell are at the Chalaja end. 3 cell हमारे Chalaja end पर उपस्थित होते हैं. 3 cell are at the Chalaja end are called antipodal cell. A typical angiosperm female gametophyte is 7 celled. यहाँ पर हम 7 cell structure देखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So a typical angiosperm female gametophyte is 7 celled and 8 nucleated maturity. 8 maturity यानी परिपक्वता पर 8 nucleated सेल हम देखते हैं और इसे हम 7 सेल स्टेज कहते हैं. यहाँ हमारे मेगास्पोर्स का निर्माण हो गया, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो गया. अब जरूरी है कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो किसी न किसी प्रकार से चलकर, क्योंकि जो मेल फ्लावर पार्ट होते हैं वो मोटाइल कहे गए हैं, मोटाइल होते हैं, उनमें क्षमता होती है कि वो उड़कर, चलकर या पानी के द्वारा किसी न किसी माध्यम से फीमेल फ्लावर पार्ट तक पहुंचे और पॉलिनेशन को संभव कर सकने की प्रोसेस को, इस प्रोसेस को जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो हो सके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. एंथर का स्टिग्मा तक पहुंचना. किसी भी एक फ्लावर में एंथर जिस प्रकार से उपस्थित हैं उनका स्टिग्मा तक पहुंचना. स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे पॉलिनेशन. So depending on the source of pollen and pollination can be divided as follow. Autogamy. It is a transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower. अगर एक ही फ्लावर पर मेल और फीमेल पार्ट उपस्थित हैं तो इसे हम कहेंगे ऑटोगेमी. ऑटोगेमी require the anther and the stigma to lie down. एंथर और स्टिग्मा